question that has been asked for some time in private, but now it has intensified after Rahul Gandhi once again left the country in the middle of the parliament session and Priyanka Gandhi held the guard in his absence. Her picture having a relaxed cup of tea with the Prime Minister and the Speaker has gone viral on social media, and so has her interaction with the Road and Transport Minister Nitin Gadkari. Now, her speech in the Parliament on Vande Mataram also outshone her brothers on electoral reform and got people talking within the Congress party and also outside. But that has hushed up conversation, in fact, exploded into headlines as the Congress MP pitched for Priyanka Gandhi as the next Prime Minister, and Robert Vadra also endorsed it. Now, Congress MP Imran Masood, while answering a question on Bangladesh, invoked Indira Gandhi and said make Priyanka Gandhi the next Prime Minister and then see. He did not pitch Rahul Gandhi but Priyanka Gandhi, who has been a parliamentarian for just barely 1 year. Now, was this a slip of tongue? Many are asking this. Well, as the story started dominating headlines, he did what all the netas are experts in. A quick U-turn that he has made. First, listen in to what Imran Masood said originally and then the clarification later. प्रियंका गांधी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देकर आएगी। आप कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बन जाती हैं तो उस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस बुला लिया जाएगा। हम बुलाएंगे क्यों, उनको उनके घर में बसाएंगे। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं। राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। And even before that clarification had come in, Masood's leadership choice had already been endorsed by none other than Priyanka's husband, Robert Vadra, the man seen as Priyanka Gandhi's biggest baggage because of the multiple money laundering cases against him. He did not just bat for Priyanka Gandhi, but also pitched for himself as well. Listen in. वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। Now, the Bharatiya Janata Party is saying that this is a clear proof that the Congress party was fed up with Rahul Gandhi and losing confidence in him as well, and the plans that simply boomeranged on the party. Now, it wasn't just the Bharatiya Janata Party. Even Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said that it was easier to work with Priyanka Gandhi than Rahul Gandhi. What's this? When Rahul Gandhi is abroad, is your life simpler in Parliament or more difficult? Because then you have to deal with Ms. Priyanka Gandhi Vadra, who's been giving good speeches. आप प्रियंका गांधी ऐसे नाम ले लेके बड़ा कर देते हो। आपको बड़ी I treat everybody as simple member of parliament. For me, nobody is special. Everybody is equal. Anybody who makes good contribution on the floor of the house is a good MP. प्रियंका गांधी को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि I don't need to give special treatment to anybody because he belongs or she belongs to a family. But her interventions have been sharp. So how do you assess her as the Parliamentary Affairs Minister? Speech अच्छा लगा? अब माहौल क्रिएट करता है कांग्रेस पार्टी, जब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बोलती है तो पूरा कांग्रेस लोग जमा हो जाता है पीछे में। बाकी लोग जब बोलते हैं तो कोई बैठता ही नहीं सुनने के लिए। They create this situation. अच्छी बात है कि बुरी बात है? I have no comment on that. That is their business. इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब जनमत तो राहुल से गया ही। When somebody within the Congress party expresses and suggests that Rahul Gandhi ji is incompetent, and somebody like Imran Masood ji, who have been always supported by Rahul Gandhi ji, and he is seen as Rahul Gandhi ji's man, yet if he is making this kind of noise, that only suggests that it's a divided horse. Now, comparing siblings is never a good idea, but what is widely felt that is Priyanka Gandhi has inherited
her grandmother's charisma and oratory skills. It is something that has been visible to all in the parliament when her comeback silenced the Bharatiya Janata Party MPs without causing any sort of offence. Now, she's also seen as friendly and more accessible than Rahul Gandhi, while Rahul Gandhi is seen by many of other Congress party as a distant leader. In fact, Priyanka Gandhi won Wayanad from Kerala, a very crucial seat with a greater margin than Rahul Gandhi. In fact, an ex-MLA quite recently from Odisha wrote a letter to Sonia Gandhi earlier this month lamenting that he had been waiting to meet Rahul Gandhi for the last 3 years when he was the MLA but never got a time. Mohammad Mokem in that letter also said that a lifelong congressman, he said that if there was any hope for the Congress's revival in the country, it was in the hands of Priyanka Gandhi. देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और सबकी इच्छाएं अब होती हैं। हम भी जिस समय पार्टी में हैं, हमारी भी इच्छाएं तो अच्छी चीज अपना बना चाहिए, हम भी तो कहेंगे, लेकिन जो देश की परिस्थितियां हैं उसके लिए पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाना आवश्यक है। मिलकर काम करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। तो वो उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी भी निजी राय है कि माननीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बने। ഇവിടെ ഈ ആൾക്കാർ രാവും പകലും ഇരുന്നിട്ട് ഈ ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മേഴ്സഡസ് എന്താണ് ഏത് വണ്ടിയാണ് BMW മോട്ടോർ ബൈക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു, കാറിൽ കയറി പരിശോധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ BMW അവിടെ ഇല്ലേ? ആ കമ്പനി പോവുക, അവിടുന്ന് പൂട്ടിപ്പോവുക. ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനിയൊന്നുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടി, അവിടുത്തെ കമ്പനിയല്ലേ? Amid rumors of a rift within the Congress party following MP Imran Masood's Priyanka for Prime Minister pitch, questions are now mounting over the intent, timing and the damage control that followed. With the Congress scrambling to contain the fallout, Times Now was quick to corner the man at the heart of the storm. His name is Congress MP Imran Masood. Group Editor-in-Chief Navika Kumar questioned Imran Masood on the remark that sparked the controversy and the intent behind it. Watch this. आज हड़कंप सा मचा दिया आपके एक स्टेटमेंट ने। आपने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा में आपको इंदिरा गांधी नजर आती हैं और उन्हें पीएम फेस बन जाना चाहिए। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम फेस तो वो तब बनेंगी जब राहुल गांधी जी की लीडरशिप से हटेंगे। नहीं, देखिए ये आप गलत उसके अंदर हैं। एक सवाल पूछा था मुझसे और उस सवाल के संदर्भ में मैंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग प्रियंका जी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही, जबकि प्रियंका जी लास्ट इलेक्शन जब हुआ था ये, तो प्रियंका जी ने पार्लियामेंट में सबसे पहले बोलने का काम किया था और पार्लियामेंट के अंदर मजबूती के साथ प्रियंका जी के साथ सब लोगों ने बोलने का काम किया था। तो प्रियंका जी के एक्शन को पूछ रहे थे। मैंने कहा प्रियंका जी प्रधानमंत्री नहीं है, बना दीजिए प्रियंका जी को प्रधानमंत्री, जवाब मिल जाएगा। जैसे इंदिरा जी ने जवाब दिया था ऐसे प्रियंका जी जवाब दे देंगी, ये मैंने कहा था। इसके अंदर आप लोगों ने पता नहीं उस बहस को कहां इधर से उधर कर दिया। नहीं, हमने क्या समझना था इमरान मसूद जी, रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी यही समझा कि आप कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जी को बन जाना चाहिए प्रधानमंत्री का फेस। रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी कह दिया। अब पहले मुझे कन्विंस करेंगे या रॉबर्ट वाड्रा जी को? देखिए ये फैसला नहीं, ये फैसला देखिए, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं, मेरे नेता भी राहुल गांधी हैं और प्रियंका जी जिस तरह से बोलती हैं, प्रियंका जी का जिस तरह का तेवर है वो बिल्कुल इंदिरा जी की शक्ल में है। और ये मैंने पहली बार नहीं बोला है कि मैंने पहली बार बोला, इससे पहले भी मैं कई मर्तबा बोल चुका हूं। लेकिन इमरान मसूद जी, ये तो आप मानेंगे ना कि कांग्रेस के अंदर कभी तो चर्चा होती होगी कि 95 हाथ लगी है कांग्रेस की और कांग्रेस को जीतने की जरूरत है। कांग्रेस जीत नहीं पा रही तो शायद लीडरशिप चेंज में जीत हाथ आ जाए। हमारा लीडर बहुत मजबूत है। हमारा लीडर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। हमारा लीडर देश के अंदर उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ रहा है जिन संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो आपके कहने का मतलब प्रियंका जी ऐसा नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती प्रियंका जी? आप प्रियंका जी को मौका मिलेगा। प्रियंका जी तो इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। प्रियंका गांधी के अंदर वो तमाम तर खूबियां हैं जो इंदिरा जी के अंदर थी। इमरान मसूद जी, सुबह तो आपने प्रियंका गांधी जी को इंदिरा गांधी जी से कंपेयर कर दिया, उसके बाद कोई आपको फोन आया क्या आप जाकर स्पष्टीकरण कीजिए? थोड़े से बदले तेवर लग रहे हैं आपके। देखिए, नहीं,
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। मैंने सुबह भी यही कहा और अब भी यही कह रहा हूं, फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, प्रियंका गांधी मेरी नेता हैं और प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी हैं, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी के अंदर जो दम है, प्रियंका गांधी से जिस तरह का खौफ खाते हैं सब लोग, विपक्षी लोग, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोग, जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे बोल रही थी तब हाल देखते कि क्या हो रहा था पार्लियामेंट में। प्रियंका जी की बातों का जवाब नहीं दे पाता कोई भी। पर फिर राहुल गांधी का क्या होगा? ये सवाल तो आपसे सुबह भी पूछा था, आपने कहा था वो भी यहीं रहेंगे। देखिए देखिए देखिए, चेहरे के ऊपर दो आंखें होती हैं और ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी की दोनों आंखों के रूप में हम लोग देखते हैं। पर लीडर एक होता है, कमांडर एक होता है, जनरल एक होता है। तो एक जनरल तो 95 हार दिला चुका है, दूसरे जनरल को ट्राई करना चाहिए कि नहीं? ये नेतृत्व फैसला करेगा, ये मेरा फैसला नहीं है, ना मेरी हैसियत है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में जॉन ब्रिटास जैसे सांसद भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो BMW ज्यादा चलाते हैं, भारत में कम रहते हैं, पार्लियामेंट में कम रहते हैं। नहीं, उनके कहने नहीं, प्रधानमंत्री जी तो यहीं बैठे रहते हैं 24 घंटे। जब प्रधानमंत्री गए तभी राहुल जी गए इत्तेफाक से। इत्तेफाक की बात है ये कि दोनों एक ही दिन चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री पे किसी ने सवाल नहीं किया। राहुल गांधी के ऊपर सब सवाल कर रहे हैं। ये बात आपने सही कही कि नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन नेतृत्व का ही तो फैसला होना है। काडर और डेमोक्रेसी कांग्रेस की क्या कहती है? आपकी आवाज सुनी जाएगी कि नहीं? देखिए, मेरी आवाज तो कांग्रेस की आवाज है। मेरी आवाज अकेली कोई आवाज थोड़ी है। मेरी आवाज तो कांग्रेस की आवाज है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और जो आदेश जनरल का होगा उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। मेरी पर जनरल कौन होगा, इसकी आवाज आपकी आवाज तय करेगी कि कौन जनरल होगा। आप इसमें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, इसमें लड़ाई नहीं होगी। हमारे जनरल राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। आपने कहा कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये आपने कहा। तो कांग्रेस का काडर ना तय करेगा जनरल कौन बनेगा? आपकी आवाज नहीं सुनी जाती? कांग्रेस के अंदर तो इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है और अंदर हम क्या बात करेंगे वो बाहर बताने की जरूरत नहीं है हमको। नहीं, आप मत बताइए, हमें पता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से जितनी आवाजें आ रही हैं, आपकी आई, रॉबर्ट वाड्रा जी की आई, शशि थरूर जी की आई, आवाजें तो आती रहती हैं। और इंडिया अलायंस से ओमर अब्दुल्ला की आई, सुप्रिया सुले जी की आई, जॉन ब्रिटास जी की आ रही है, आनंद दुबे जी की आ रही है। तो आवाजें तो बहुत आती हैं, आपके संगठन से भी, आपकी पार्टी से भी। नहीं, देखिए ऐसा है, सब लोग अपने अपने कयास लगाते हैं, वो अपने लगा रहे हैं, जिसको जो लगाना है वो लगाए। लेकिन मैं तो जो बात सुबह कही थी वही फिर दोहरा रहा हूं। प्रियंका जी जो है मजबूत और सशक्त, जो कनेक्ट करता है पब्लिक के साथ, वो फेस है। तो कौन करता है? राहुल गांधी जो 95 हार दिला चुके हैं, या जैसे प्रियंका गांधी जी ने बोला, जीराम जी बिल पर बोला, वंदे मातरम पर बोला, क्योंकि मोहम्मद मुकिम भी जी ओडिशा वाले थे, उधर नवजोत कौर जी भी थी, उनकी भी आवाजें सुनाई दी, निकाल दिया पार्टी ने उनको। इतनी डेमोक्रेसी है। नहीं, वो उनकी नहीं, उनकी आवाजें देखिए, जो जिस तरह से नवजोत कौर जी ने बोला, वो पूरी तरीके से पार्टी के विरोधी बात थी। वो जिस तरह से बोल रही थी वो किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं बोला जाता है। मैंने तो सिर्फ एक कंटेस्ट में बात कही, एक संदर्भ में बात कही, उसी संदर्भ के अंदर पूरी तरह से उस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। मैं कोई गलत बात थोड़ी ना कही मैंने। तो नवजोत कौर जी के ऊपर भी आप कोई जांच बिठाते? पार्टी के अंदर अगर आरोप लगते हैं तो डेमोक्रेसी तो कहती है कि आरोप की छानबीन होनी चाहिए। आपने तो उठाकर अगले दिन सुबह बाहर निकाल दिया। नहीं, सार्वजनिक रूप से जिस तरह का उनका बयान था वो बहुत खराब था। इमरान मसूद जी, मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूं। मैं चाहती हूं कि कल सुबह मैं जब फोन करूं तो आप कांग्रेस के सांसद नेता रहें,
प्रियंका जी के नाम लेने की वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। शुभचिंतक हूं आपकी, हमेशा दुआ करूंगी कि आप बने रहें। सुबह फोन मेरा जरूर ले लीजिएगा। नविका जी मैं ले लूंगा और आप निश्चिंत रहिए। मेरा, क्योंकि मैं गांधी फैमिली के साथ जुड़ा हूं और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इंदिरा जी कौन सी वाली गांधी फैमिली? वाड्रा जी वाली गांधी फैमिली या ओरिजिनल गांधी फैमिली? मैं इंदिरा जी की बात कर रहा हूं। इंदिरा जी के एक पोता एक पोती है जिसका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, और उनको हम दो आंखों के रूप में देखते हैं इंदिरा जी के। चलिए, अब आंखें धोखा ना दें आपको, और आप बने रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ इमरान मसूद जी। And so that was Congress MP Imran Masood dodging the question when asked about his remarks that sparked the controversy and the intent behind it as well. Now moving on and shifting our